Hello everyone. Let's invite Shahreen. Hi everyone. Hi, people are joining. I'll wait for a minute. Yeah, hi Soumya. Hi, my Instagram family. How are you doing, everyone? I hope everyone is fine. After a week, I'm meeting every one of you again. The topic is very interesting today. So I have invited a very nice collaborator with me. She's one of my very good friend also, and the topic is very interesting. So are you guys excited? I feel so. So let's wait for a minute. The people are joining here. Hi Shireen. Hi Instagram family. Hi Adil. Hi everyone. Yeah, request have come. Just having. Hi Shireen. Hi. Hi. Just give me a second. People are joining. I'm just waiting for the Yes, audience. How are you definitely. doing? Yeah, I am doing great. Hi, viewers. How are you all? Yeah. Hi viewers. Sandhya joined. Yeah, many. Hi everyone. Yes. So, hope you guys know today's topic. Today's topic is how to monetize your skills using digital marketing. So, whatever skills you have, if you feel that you have that skill, okay, that can be that using that skill you can provide a service or you can give a training to anyone. Okay, if you have any type of skills, okay, that skills you can monetize it. What is mean by monetization? Monetization means you can make money out of it, that skill. So how you can make money out of that skill using digital marketing, you will be learning today. Okay, completely you can't learn, but I am going to give you a clear idea. Okay, so whatever the doubts you have, you can ask me. And Nilofer, we both are here to clear your queries on that topic today. Okay, so I am Yes, very excited, and Nilofer is very excited. Okay, to I am share a too lot of super excited, information to yeah, you guys. Yeah. because we are meeting after a week. So, firstly, hi Instagram family, and I hope everyone is fine along with us. Me and Shahreen are very fine. As you see, we both are very excited to meet you all people Yes, again. yes, Yeah. it's right. So, शरीन, टॉपिक में घुसने से पहले बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक चलो थोड़ा बात कर लेते हैं पहले। यार हम लोग एक वीक के बाद पूरा मिल रहे हैं। सो कैन यू डिस्क्राइब हाउ वाज योर वीक लास्ट वीक से अभी तक? It's, कैसे रहा yeah, आपका it's वीकेंड? हाँ पूरा super वीक। awesome. हाँ कि I was working on my affiliate program as well as I was working for my clients. Okay, I also do website designing and digital marketing service for the clients. So same as usual, full on busy. Uh, और क्या full of earnings. earning हाँ इस तरीके से एक it's मिनट going ना, on. यहाँ पे उस्मान है कोई, उस्मान वो लाइव आना चाहते हैं, तो अभी उनको लाइव ले लें या उनको होल्ड करें? हम एंड में लेंगे लाइव, जिसको ओके। भी लाइव लेना है एंड या में हम हाय लेंगे, उस्मान, उनको आप डिस्कस कुछ देर के लिए करेंगे। रुक जाइए, पहले टॉपिक कवर कर लेते हैं, फिर आप भी लाइव आ जाना हमारे साथ। आई होप यू विल वेट डेफिनेटली। विथ फॉर अस। ठीक है यस यस उस्मान? यस। या हाँ, या किसी को भी अच्छा। लाइव आना है एंड में वी विल गिव एन अपॉर्चुनिटी, ओके, फॉर 2 to 3 पीपल यू गाइस कैन। हाँ, मैंने देखा आपका जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है बहुत धमाकेदार चल रहा था इस वीक। तो आपने बहुत सारे अपडेट्स डाल दिए, आप बहुत सारे माइलस्टोन भी कवर कर चुके हो। यू आर वर्किंग इन हाँ इन विथ मेनी मेनी आई थिंक डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट्स। क्या क्या चल रहा है या अभी? एक वीक में बहुत कुछ कर लिया। वाज लाइक, हाँ आई वाज वर्किंग, मतलब मैंने बहुत दिन से मैं वर्क कर रही थी उस हम्म। इंस्टीट्यूट के लिए और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, बट आई डिड नॉट अपडेट। ओके, सो आई थॉट दैट दिस इज द राइट, मतलब अपडेट करेंगे ऑन सोशल मीडिया प्रोफाइल सो दैट माय ऑडियंस विल आल्सो कम टू नो दैट, okay, Sharon also do such type of services. Okay,
तो अगर उनको उसके रिगार्डिंग कुछ भी पूछना है तो डेफिनेटली दे कैन आस्क, राइट? उनको कुछ गाइडेंस होना है या कुछ भी है तो इट विल बी इजी फॉर देम टू अप्रोच। कर दिया लास्ट। Okay, very nice. Congratulations for those 2 milestones and 3, 4 यस, milestones. And we hope we, including me and my audience, will be like achieving the milestones like you. You are a very digital डेफिनेटली। entrepreneur these days. हाँ, आज का सेशन नीलोफर ने बहुत ही अच्छा एंड यूजफुल टॉपिक शी हैज सेलेक्टेड, सॉरी, she has selected a useful topic, क्योंकि by with this you will understand that how you can start your multiple sources of income. Okay, डिजिटल मार्केटिंग स्किल में आप क्या क्या कर सकते हो। ओके, ये सारे थिंग्स आप यहाँ पे आज इस टॉपिक में आप जान सकते हैं। ओके, तो बहुत ही अच्छा, आई रियली अप्रिशिएट दैट यू हैव टेकन अ वेरी बेस्ट टॉपिक सो दैट अपने ऑडियंस को बहुत ही हेल्पफुल होगा। या आई डू बिलीव दैट सेम। एक्चुअली यार या हुआ क्या ना कि अभी जब से मतलब मेरा भी देखिए वीक कैसा रहा ना कि जब हमारा लास्ट लाइव मीटिंग हुआ उसके बाद मैंने अपना फिर से एक मतलब एक जो मेरा रूटीन है, जो मेरा एफिलिएट का रूटीन चलता है या डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो मेरा रूटीन चलता है उसको मैंने थोड़ा रिवाइव किया। तो तब मुझे रियलाइज हुआ लाइक मी मेनी पीपल आर देयर इन द सोशल मीडिया जिसको आगे बढ़ना चाहिए। तो मुझे लगा कि लेट्स टॉक ऑन दिस प्लेटफॉर्म की आपके पास डिजिटल स्किल क्या होनी चाहिए जो आपको मोनेटाइजेशन में भी हेल्पफुल रहेंगे। मतलब आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे तो हो, आजकल तो हर कोई मतलब सोशल मीडिया पे है, व्हाट्सएप ले लो, इंस्टाग्राम ले लो, ट्विटर ले लो, लिंक्डइन ले लो, कुछ भी है, बट लोग अपने लिए यूज नहीं कर रहे हैं वो फील्ड को। तो मेरे दिमाग में ऐसी बात आई जब से पैंडेमिक आया है तो सब लोग घर पे ही है और बहुत सारे लोग मतलब हमारे जो मेन जो एज ग्रुप है ना 18 से 35 36 तक, वो लोगों को पता है आजकल फोन तो सबके हाथ में, बट किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं वो लोग। तो मुझे लगा कि चलो भाई इनको थोड़ा मोनेटाइजेशन के बारे में, अपने डिजिटल स्किल इंप्रूवाइज करने के बारे में थोड़ा समझा देते हैं हम। तो बेसिकली यही था कि एक सोशल कॉज के लिए मैंने ये टॉपिक चूज किया। एंड आपसे ओके, बेहतर ऑसम। तो मैं किसी से इतना ओपनली भी बात नहीं कर सकती, बिकॉज आई ट्रस्ट यू, आई बिलीव यू, आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और अभी आप अच्छा कर रहे हो, तो इसलिए लगा कि आपसे टॉपिक एक बार डिस्कस कर लूँ मैं। एंड यस यस मैंने भी क्या किया ना लास्ट वीक से, देखो अभी तक मेरी भी कुछ अच्छी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में भी काम करती हूँ। आई वर्क ऑन हाँ, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है मेरे भी, जैसे कि मैं एफिलिएट मार्केटिंग कर लेती हूँ, उसमें भी मेरी अच्छी निकल जाती है, अच्छी सेल्स हो रही है, उसमें मेरा एफिलिएट चल रहा है अच्छा राइट। सा। और साथ ही साथ एज यू नो मैं एक यूट्यूबर भी हूँ। मेरा एक नया क्रेज हो गया है मुझे कि मैं अच्छा यूट्यूबर बनूं या फिर अच्छे यूट्यूब पे अपनी नॉलेज शेयर करूं सो दैट आई कैन कनेक्ट विद मल्टीपल पीपल। तो उस पर भी मेरा राइट। लास्ट वीक से लेकर इस वीक तक ना इन 8 दिनों में बहुत अच्छे टॉपिक्स गए और ऑडियंस ने मुझे अच्छा रेस्पॉन्स दिया। जैसे कि इफेक्टिव लीडरशिप क्या होती है, प्रॉब्लम क्या है हमारे जो नए स्टार्टअप है उसके बारे में, और साथ ही साथ अभी स्ट्रैटेजीज क्या होती है बिजनेस की ऐसे कुछ कुछ टॉपिक्स मैंने कवर किए, अपने ऑडियंस से मैंने शेयर किए। तो मेरा वीक भी बहुत अच्छा रहा लास्ट या वीक से लेकर तक। मॉनिटर कर रही थी आपका, मतलब देख रही थी आपका कंटेंट, यू आर डूइंग रियली गुड। ओके, यू आर कीपिंग ओ नाइस। पोस्ट, मतलब कंसिस्टेंटली आप लगा रहे कंटेंट को, पोस्ट को अपने ऑडियंस के लिए, अपने बिजनेस के रिगार्डिंग। दैट इज वेरी गुड पार्ट। ओके, कंसिस्टेंसी I इज am वेरी गुड। I'm very happy today to get the appreciation from you like this. Thank you so much. And यू डू आप फॉलो वेरी। करते रहिए एंड बाकी सबसे भी शेयर करिए, एंड माय ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे कंटेंट को फॉलो करिए। आई नीड ऑल सपोर्ट। हाँ हाँ हाँ, यस। आप नीलोफर चलिए। का प्रोफाइल देख सकते हैं, वहां पे उनके यूट्यूब के बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। अगर आप बिजनेस के रिगार्डिंग कोई भी कंटेंट को देख रहे हैं या डिजिटल के रिगार्डिंग, अफिलिएट मार्केटिंग रिगार्डिंग, बहुत अच्छा कंटेंट उनके चैनल पे आपको मिलेगा। तो थैंक डेफिनेटली यू। गो एंड चेक आउट। ओके, चलो या अभी ओके, तो थैंक्स लेट्स, फॉर ज्वाइनिंग, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग फॉर द टुडे लाइव एंड लेट्स या गो विद द टॉपिक। या अभी देखिए डिजिटल स्किल्स क्या हैं, व्हाट आर द दोज डिजिटल स्किल्स, पहले हम जानना चाहेंगे फ्रॉम यू। या रफली सबको मालूम होता है, बट मैं चाहती हूँ कि आप एक तरह से बताइए कि लोगों को समझ में आए, जो भी सुन रहे हैं ना उनको हाँ बाद में भी सुनेंगे रिप्ले करके। तो एक डिजिटल स्किल का जो मतलब होता है वो आप पहले मुझे बताइए, व्हाट आर डिजिटल स्किल्स, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम आवर रेगुलर स्किल्स, and why are we so giving this much importance to these skills these days? यस। डिजिटल मार्केटिंग मतलब क्या होता है? देखिए, डिजिटल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज करके हम मार्केटिंग करना, प्रमोटिंग करना अपने बिजनेसेस को, वो है डिजिटल मार्केटिंग। वर्ड से ही पता चलता है, डिजिटल एंड मार्केटिंग। तो अभी डिजिटल स्किल्स क्या है? स्किल्स मतलब जो हम सोशल मीडिया यूज करके जो भी काम करते हैं। ओके, इट मे बी ऑफ ऑनलाइन बिजनेस, अगर इट मे बी ऑफ ऑनलाइन कोचिंग, इट मे बी अ डिजिटल सर्विस, मतलब कोई भी बिजनेस को ग्रो करना है डिजिटली, इट इज कॉल्ड एज डिजिटल सर्विसेज।
ओके, वी प्रोवाइड डिजिटल सर्विसेज। तो ये सारे थिंग्स होते हैं डिजिटल स्किल्स, राइट। ये सारे डिजिटल मार्केटिंग में ही आते हैं। लेकिन एज अ बिगिनर, अगर आप बिगिनर हो तो इन डिजिटल मार्केटिंग व्हाट यू हैव टू लर्न, ओके। आपको अगर समझिए इसमें बहुत सारे थिंग्स है। लेट मी टेल यू फ्यू स्किल्स विच यू कैन लर्न। अगर आप वो सीखोगे तो आप आगे जाके उसको अच्छे तरीके से मोनिटाइज कर पाओगे। इट इज नॉट लाइक शॉर्ट टर्म वन। मैं शॉर्ट टर्म के लिए आप लोग को नहीं बोल रही, इट्स लाइक अ लॉन्ग टर्म। ये आपके लिए, ये स्किल आपके लिए एक असेट बन सकता है, ओके। तो फ्यू इयर्स बैक मैंने मेरे डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स को सीखा। वेबसाइट डिजाइनिंग हो, पेड एडवर्टाइजमेंट हो, ओके, सोशल मीडिया ब्रांडिंग हो कंपनी के लिए। तो वो स्किल्स मैंने few years back सीखा है, but today also I am making money by designing websites for the client. Okay, it is only because of learning that skill, digital skill. Website designing सीखा मैंने few years back, and currently also I am making money with that. So if you also want to make money using digital skills, तो वो जो कौन से वो skills है which is having highly demand, वो अभी नहीं फ्यूचर में भी आपको हाईली डिमांड रहेगा। ऐसा नहीं है कि फ्यू इयर्स के बाद उसका डिमांड चले जाएगा, हाईली डिमांड रहेगा। वो होगा अगर आपके वो डिजाइनिंग के तरफ, ओके, डेवलपिंग के तरफ आपको इंटरेस्टेड है तो आप वेबसाइट डिजाइनिंग सीख सकते हैं। इट इज वेरी इजी अभी, मतलब बिकॉज ऑफ वर्डप्रेस, विदाउट एनी कोडिंग नॉलेज आप एक कंप्लीट वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं, ओके। तो अगर आप डेवलपिंग की तरफ आएंगे, डिजाइनिंग की तरफ आएंगे तो आप वो कर सकते हैं। आप वीडियो मेकिंग की तरफ, अगर आप वीडियोस बनाना आपको अच्छा लगता है या वीडियोस को एडिट करना अच्छा लगता है, देन यू कैन गो विथ वीडियो एडिटिंग और वीडियो मेकिंग। यूट्यूब का हम सबको पता है, वी ऑल यूज यूट्यूब, राइट, राइट। तो डेली वी यूज यूट्यूब। एक दिन भी ऐसा नहीं होता कि हम यूट्यूब नहीं चेक करते, कहीं ना कहीं रीजन से हम जाके यूट्यूब चेक करते हैं, राइट। तो हमारे जैसे कितने ऑडियंस है, अगर आप उस स्किल को डेवलप करोगे, वीडियो मेकिंग या वीडियो स्किल, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड फॉर यू टू मोनेटाइज, ओके। या आपके पास कोई स्किल है, आप कोई भी सब्जेक्ट हो या कोई भी हो, अगर समझिए आप मैथ में परफेक्ट, तो आप ट्रेन कर सकते हो लोगों को मैथ के ऊपर, ओके, उनका मैथ जर्नी को इजी कर सकते हो। तो यू कैन बिकम अ, ओके, मैथमेटिशियन, ट्रेनर और कोच, ओके, एनीथिंग यूजिंग सोशल मीडिया। आप यूट्यूब चैनल कर सकते हो, आपका खुद का कोर्स लॉन्च कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप ओनली डिजिटल मार्केटिंग के स्किल से कर सकते हैं। अगर आपको जो भी स्किल है उस स्किल्स को आप यूज करके आप मोनिटाइज कर सकते हो। तो अभी करना कैसे है, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स है जिसको बुटीक में बहुत ही इंटरेस्टेड है, ओके। तो वो लोग क्या किए, मतलब उनका एक सेपरेट वेबसाइट लॉन्च किए, उसमें बुटीक के डिजाइन, उनका वर्क डालना, ऑनलाइन ऑर्डर्स लेना। तो दे आर मेकिंग देयर बुटीक स्किल्स, ओके, उनके ऑनलाइन मतलब सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया यूज करके उन्होंने उनके बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। इन द सेम वे अगर आपके पास भी कोई ऐसा स्किल है तो आप भी मोनेटाइज कर सकते हैं। लेकिन करें कैसा, राइट। हम सबको रहता है कि ओके मुझे यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, लेकिन हम उसको मोनेटाइज लेवल तक ले जा नहीं सकते। बहुत सारे लोग फेल हो जाते, बीच में रोक देते, कंसिस्टेंटली अपलोड नहीं करते, उनको उनको किस तरीके से उसको एसईओ करना, ये सारा नॉलेज नहीं रहता। इससे रीच कम होगा इनिशियल स्टेज में, ऑब्वियसली रीच कम होगा, कम व्यूज आएंगे, कम वॉच टाइम रहेगा। तो इससे लोग डिमोटिवेट होते हैं और वहीं पे रोक देते हैं। तो So, अगर आप yeah, की एक चीज, या अगर आप कोई भी, basically हाँ, आप समराइज करना चाहते हो लाइक कि जो डिजिटल स्किल्स होते हैं, these are the skills which we can develop using the digital platforms and which we can implement the knowledge on the digital platforms. जैसे कि आपने बताया दी वेरी मतलब अच्छी चीजें कौन कौन सी जैसे कि डिजिटल स्किल्स में आती है हमारी, वर्डप्रेस हो गया, यूट्यूबर हो गया, और क्या बोला आपने कि वेबसाइट डिजाइनिंग, मार्केटिंग हो गया। अगर आप बिजनेस एफिलिएट में या मार्केटिंग। सेल्स के तरफ अगर आप इंटरेस्टेड है, बिजनेस के तरफ, मार्केटिंग की तरफ, सेल्स की तरफ इंटरेस्टेड है, गो विथ एफिलिएट मार्केटिंग। वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि करेक्ट, बिकॉज वहां पे आपको खुद का प्रोडक्ट लॉन्च करना नहीं पड़ेगा, राइट। प्लेटफॉर्म आप मिल जस्ट जाता उसको है। सीखना है, या जस्ट उसको सीखना है और उसके लिए वर्क करना है एज एन एफिलिएट मार्केटर। जब आप करते यस, करते एक प्रॉपर ट्रेनिंग ले लीजिए, एक मेंटर को ले लीजिए, ताकि आप आपको गाइड कर सके और आप सक्सेसफुल बने, ओके। तो एफिलिएट तो मार्केटिंग भी आप कर सकते हो। आप इतने सारे बताए ना अभी ऑप्शंस, मुझे इसमें से रेटिंग करके बताइए 1 2 3 कौन सा रहेगा बेस्ट। सो मेनी यू हैव हाँ, प्रोजेक्टेड नाउ। यस नीलोफर, बेस्ट तो किसके स्किल के हिसाब से उसके प्लेस पर वो बेस्ट है, ओके। ऐसा नहीं कि दिस इज द बेस्ट, दिस इज द बेस्ट, बट हम उसको किस तरीके से कौन से लेवल पे काम करते हैं, कितने ड्यूरेशन के लिए काम करते हैं, कितने कंसिस्टेंटली काम करते हैं,
वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप समझिए वेबसाइट डिजाइनिंग, ओके एग्जाम्पल, वेबसाइट डिजाइनिंग एक बेस्ट स्किल है, ओके, लेकिन हम कितने लेवल पे, कौन से लेवल पे उस चीज को कर रहे हैं, ओके, कितना लॉन्ग ड्यूरेशन पे कर रहे हैं, वो लगता है। अगर आप सीख लिए वेबसाइट डिजाइनिंग, ओके, लेकिन आप किसी के लिए प्रैक्टिकली काम नहीं किए, ओके, किसी को सर्विस नहीं दिए, ओके, या आप उसके लिए क्लाइंट्स लाना नहीं, मतलब नहीं लाए, कुछ ना कुछ रीजन से आप नहीं किए, तो वो इट वोंट गिव यू मनी, राइट। Yeah. तो ये जो भी स्किल्स मैंने बताया वो टॉप स्किल्स है, वेबसाइट डिजाइनिंग हो, वीडियो मेकिंग, वीडियो मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग। अगर आपको इंग्लिश में अच्छा है, मतलब आपको राइटिंग में पसंद है, कॉपी राइटिंग स्किल्स आपको इंटरेस्ट लगता है, लर्न कॉपी राइटिंग, ओके, तो आप कॉपी राइटिंग से भी अर्न कर सकते हो। ऐसा इस तो तरीके से अगर आप वही चलाना आता कहने है। की बात ये हुई कि स्किल्स तो बहुत सारे हैं, आपने डेवलप करने के ऊपर है। और दूसरी बात है कि कहते हैं ना, नॉलेज विदाउट इम्प्लीमेंटेशन इज जस्ट एंटरटेनमेंट। जब तक हम इम्प्लीमेंट यस नहीं करेंगे तो हमारा जो नॉलेज है वो हमको रिजल्ट नहीं देगा, वो जस्ट ऐसे एंटरटेनमेंट बन जाएगा। तो इम्प्लीमेंटेशन इज राइट द की फॉर एवरी ग्रोथ एंड सक्सेस आफ्टर गेनिंग द नॉलेज। नाइस स्किल्स यार। यस अच्छा, अब ये बताओ हाँ कि इतने सारे स्किल्स है ना, इसमें बिगनर कौन से ले सकते हैं? व्हाट आर द स्किल्स विच आर वेरी एप्लीकेबल फॉर द बिगनर्स? यस। तो इसमें ये होगा कि बिगिनर लेवल में ना नीश को सेलेक्ट करना पड़ता है, ओके। नीश मतलब क्या होता है? नीश मतलब योर इंटरेस्ट, योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। आपको इंटरेस्ट किस चीज में है, ये नहीं कि आपको नॉलेज है या नहीं वो चीज का, लेकिन आपको उस चीज का इंटरेस्ट होना है। अगर समझिए आपको एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है, आपका इंटरेस्ट है वो, आपको यूट्यूबर बनना है, तो अभी आपका इंटरेस्ट कौन से चीज में है, आप उसको ढूंढना है। कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के ऊपर इंटरेस्टेड है आप, ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में आप उसको रिसर्च करने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए बहुत ही इंटरेस्टेड है, यू हैव दैट इंटरेस्ट, ओके, तो आप उस नीश को फर्स्ट इनिशियली चूज करिए। फिर डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में एक वर्ड एक होता है कि यू आर नॉट मैरिंग टू योर नीश। मतलब ऐसा नहीं है कि आज मैं इस नीश को सेलेक्ट कर लिया तो लाइफ लॉन्ग मुझे एक ही पे फॉलो करना है, ऐसा कुछ नहीं है। इनिशियली आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसको सेलेक्ट कीजिए और ये डिसाइड करिए कि उसको किस तरीके से मोनेटाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया अभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे आपको इंटरेस्ट है, यस। उसके ऊपर रिसर्च करना, उसका नॉलेज आपको है, तो अभी इनिशियली आप सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे मोबाइल वाला निश, ओके, और उस यस। निश पे आप यूट्यूब में वीडियोस बना रहे हो, यू हैव बिकम अ यूट्यूबर नाउ, ओके। अभी आगे जाके आपको लग रहा है कि यू कैन डू गुड विथ लैपटॉप्स ऑल्सो, देन यू कैन डू विथ लैपटॉप्स ऑल्सो। आपको ये लग रहा है कि यू कैन डू गुड विथ सॉफ्टवेयर टूल्स, ओके, देन यू कैन डू सॉफ्टवेयर। ऐसा नहीं कि मैंने मोबाइल सेलेक्ट किया तो मुझे मोबाइल से ही थ्रू आउट जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जब मैंने मेरा डिजिटल मार्केटिंग स्किल मतलब करियर स्टार्ट किया था, ओके, तो मुझे जब मैं सीख रही थी मुझे वेबसाइट डिजाइनिंग बहुत अच्छा लगा, ओके। तो जो मेरे मेंटर है अमित सर, तो वो बोले कि देखिए एक स्किल को आप अच्छे से सीखिए, ओके, और उस चीज पे आप काम करिए इनिशियली। जब उस पे काम करोगे आपको पता चलेगा कि व्हाट आर द अदर थिंग्स दैट यू कैन डू, ओके, तो उस पे आप फिर चेंज कर सकते हो। नीश इज नॉट लाइक यू आर नॉट मैरिंग टू एनी पर्टिकुलर नीश। आपको स्टार्ट करने के लिए आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उससे स्टार्ट करना है। क्यों? क्योंकि अब देखिए मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर रिसर्च करना मुझे उतना अच्छा नहीं लगता। अगर मैं उस चीज के ऊपर टॉपिक सेलेक्ट करूंगी तो हम ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लगा पाएंगे, राइट। एग्जैक्टली। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स के ऊपर, टूल्स के ऊपर, एफिलिएट एग्जैक्टली। मार्केटिंग के ऊपर मुझे इंटरेस्टेड है, तो उसके लिए मैं 1 आवर 2 आवर भी रिसर्च करने के लिए मैं बैठ सकती हूँ, क्योंकि दैट इज माई इंटरेस्ट, राइट। So तो that is उसके the importance of ऊपर selecting the niche. Yeah, या that दैट is इज the द ओनली importance of इम्पोर्टेंट। selecting digital क्योंकि marketing. राइट, अगर आप यूट्यूबर बनना है तो वो 1 डे 2 डे का प्रोसेस नहीं है, राइट, इट्स लाइक मंथ। यू हैव टू रीच दैट माइलस्टोन, देन ओनली यू विल गेट मोनेटाइजेशन। उस माइलस्टोन को रीच करने के लिए यू हैव टू मेक लॉट ऑफ वीडियोस, यू हैव टू जनरेट लॉट ऑफ यूनिक कंटेंट, ओके, फॉर योर ऑडियंस। Consistency, yeah. कंसिस्टेंसी, Yes. अगर कंटेंट तो ऑलरेडी है यूट्यूब पे, लेकिन आप किस तरीके से एक इजी वे में अपने ऑडियंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप कितने Exactly. अच्छे से रिसर्च करोगे उतना इजीली उनको समझा पाओगे, राइट। तो Yeah. रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप इंटरेस्ट ही नहीं है, आपको उसके ऊपर पढ़ने का मन ही नहीं है उस टॉपिक पे, तो आप अच्छा कंटेंट डिलीवर नहीं कर सकते। दैट द रीजन वी टेल दैट whatever the niche you are selecting, your area of interest प्लस उसका डिमांड भी होना है, मतलब उसका डिमांड भी रहना है, ओके, उस टाइप ऑफ नीश को आप इनिशियली सेलेक्ट करना। Yes.
सो बिगनर को पहले सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना है, एनीवन हु वांट टू स्टार्ट द डिजिटल स्किल्स and they want to grow, they want to monetize their digital skills, means first they have to find out the niche means the Yes. area of their interest. For example, कोई वेबसाइट डिजाइनिंग अच्छा कर लेता है, कोई मतलब फ्रीलांसिंग अच्छा कर लेता है, कोई एफिलिएट कर लेता है, मतलब एरिया डिसाइड करो पहले कि किस टॉपिक पे करना है, What is their interest? उनको करना क्या है? नीश सिलेक्शन। उसके बाद बिगनर को क्या करना चाहिए, बिकॉज बिगनर लेवल का पहला टॉपिक थोड़ा कवर कर लेते हैं। हाँ. Once the niche is selected, then they have to keep on doing like freelancing करो, affiliate marketing करो, यूट्यूबर करो, Yeah. एंड वेबसाइट वीडियो मार्केटिंग करो, कुछ भी करो, बट रेगुलरली करना है आफ्टर सिलेक्शन ऑफ द निश। हाँ. या नाइस। अभी ये बताइए, जैसे कि कुछ लोग ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में हैं, मीन्स दे आर वेल डेवलप्ड है, दे आर नर्चर्ड, मतलब अभी स्टार्ट नहीं किया, नर्चर्ड है, उनको नॉलेज है, वैसे लोगों के लिए या यू गॉट हाँ नीलोफर, हाँ जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है वही बोले ना, जो ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग में एग्जिस्टिंग है। हाँ ओके, वो लोगों को क्या क्या स्ट्रेटजीज फॉलो करनी चाहिए? अभी देखो ऑलरेडी कोई डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, ओके, तो उस उनके बिजनेस को या उनके प्रोसेस को हम और किस तरीके से अच्छे से उनको, मतलब मेन ये है ना, बिजनेस में ना, कोई भी बिजनेस हो वो एक पीपल सेंट्रिक नहीं होना है, सिस्टम सेंट्रिक होना है। मतलब ये नहीं कि पीपल पे डिपेंड होना है, एक कंप्लीट सिस्टम पे डिपेंड होना है कि अगर वो पीपल, मतलब वो लोग रहे या नहीं रहे, उनके बिजनेस स्मूथली रन हो। अगर समझिए वो पीपल सेंट्रिक है, ओके, और वो टीम पे डिपेंड होता है सारा कुछ। अगर वो टीम कोई इश्यू से अवेलेबल नहीं है तो उस दिन वो बिजनेस परफॉर्म नहीं कर पाएगा, राइट। तो अगर कोई भी एक बिजनेस करे, सपोज ले लीजिए एक अफिलिएट मार्केटर ही है, ओके, या एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट है, ओके, जो सर्विस देते हैं क्लाइंट्स को। अगर वो लोग एक सिस्टम सेंट्रिक नहीं करेंगे, मतलब एक ऑटोमेटेड नहीं करेंगे, एक प्रोसेस थ्रू नहीं करेंगे, तो अगर उनके टीम में कोई भी एब्सेंट हो तो उस दिन उनका वर्क डिले होगा, राइट। एग्जैक्टली, पीपल डिपेंडेंट हो गया ना ये। हाँ राइट, तो उनको एडवांस स्किल्स क्या होते हैं, सिस्टम सेंट्रिक किस तरीके से करे, कंप्लीट ऑटोमेशन किस तरीके से करे, ताकि उनका बिजनेस 24/7 रन होता रहे, ओके, उनके एब्सेंस में या प्रेजेंस में, ओके। तो उस चीजों को, उस स्किल्स को वो लोग डेवलप करना है। अगर उनका विजन क्लियर है कि माइन इज अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी और मेरा टारगेट है मुझे बिजनेस ओनर्स को सर्व करना है, उनके बिजनेस को ग्रो करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग सर्विस देना है, दिस इज क्लियर, ओके, उनको क्लैरिटी है। तो अभी उनको क्या करना है कि उस प्रोसेस को सिस्टम सेंट्रिक किस तरीके से करे, उस प्रोसेस को ऑटोमेटेड किस तरीके से करे, तो क्या है वो टूल्स, क्या है उसके बारे में उनको सीखना है। बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल है, टॉप इन्फ्लुएंसर्स है, बहुत सारे ट्रेनिंग्स है, तो वो स्किल्स को वो डेवलप करके अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हैं ऑटोमेशन टूल्स यूज करके। एक सॉलिड पॉइंट आपने क्या बताया कि देखिए जो एग्जिस्टिंग डिजिटल मार्केटर है वो करते करते कभी सैचुरेट हो जाते हैं किसी फील्ड में, या फिर उनके ज्यादा मतलब उन्होंने ज्यादा नॉलेज शेयर कर दी, अपना काम कर लिया, फिर भी वो अभी स्टैग्नेंट हो गए, तो वैसे लोगों को डीएमएस, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ऐसा कुछ अपना शुरू कर देना चाहिए जिसमें वो अच्छा ग्रो कर सकते हैं। एंड इट्स लाइक बहुत एफर्ट लगता होगा उसमें, तो इट नीड्स लॉट ऑफ कोलैबोरेशन। यस यस यस, इनिशियली तो एफर्ट लगता है डेफिनेटली, लेकिन उसके बाद के जो रिजल्ट होंगे ना, धमाकेदार होंगे। हाँ, कोई जॉब उनको वो रिटर्न नहीं दे सकता। हाँ, इनिशियली तो स्ट्रगल होगा डेफिनेटली। हाँ ओके नाइस। अभी ये बताइए कि देखो डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स के बारे में हमने देख लिया और उसको मोनेटाइज कैसे करना है आपने बता दिया, एंड दूसरा हमने डिस्कस किया बिगनर और जो एडवांस लेवल के डिजिटल मार्केटर है जो कर रहे हैं उनको कैसे ग्रो होना चाहिए। एक कॉमन क्वेश्चन ये आता है कि डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स का जो इतना हाइप हो चुका है ना अभी, कभी कभी लोग जो है नॉर्मल ऑडियंस वो थोड़ा कतरा जाती है कि भाई हमको ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। पीपल आर नॉट एबल टू स्टिल अंडरस्टैंड कि जो लोग मोबाइल में पकड़े हुए हैं, जो अपना डेली स्टेटस लगाते हैं, कुछ भी लगाते हैं, वो ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में है बट उनको पता नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन अभी यहाँ पे ये बनता है कि ये बताइए मुझे कि कौन कौन से लोग ऐसे हैं, मतलब कौन कौन से लोगों के लिए डिजिटल मार्केटिंग फील्ड या स्किल्स
कर सकते हैं वो लोग. Means who are the people who can go with the digital marketing skills? Even though people know them, but they don't know they can do. So can you summarize that? Who are the या people who डेफिनेटली, can do this? हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. देखिए, कोई भी चीज हर एक लोग के लिए नहीं होता. थोड़े लोग के माइंडसेट यही रहता है कि बिजनेस मीन्स लॉस, बिजनेस मीन्स रिस्क, ओके, ऑनलाइन मीन्स स्कैम, ओके. ये माइंडसेट उनको रहता है. अब आप कितना भी आप समझाओ, ओके, कितना भी आप समझाओ, अमेजोन के जो सीईओ है वो भी आके समझाएंगे, वो नहीं सुनेंगे. वो बोलेंगे कि ऑनलाइन स्कैम, ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन ये कुछ नहीं होता, स्कैम ही होता है. तो इस लोगों को हम कुछ नहीं कर सकते, इस तरीके के लोगों को. लेकिन थोड़े लोग ऐसे होते हैं कि वो लोग को ऑनलाइन पे ट्रस्ट होता है. मतलब ऑनलाइन पे ट्रस्ट होता है कि डिजिटली वी कैन जनरेट इनकम, ओके, डिजिटल मार्केटिंग स्किल से या डिजिटल प्लेटफॉर्म से वी कैन जनरेट इनकम. बट किस तरीके से करें वो गाइडेंस उनको नहीं रहेगा. किस तरीके से उनको स्टार्ट करना है, उनको क्या स्किल सीखना है, ओके, उनका जो एंड रिजल्ट पाने के लिए उनको क्या स्किल सीखना है, ये चीज उनको आइडिया नहीं रहता. तो यहाँ पे लैक करते. तो इसके वजह से वो लोग क्या करते ना, यूट्यूब पे जाते, बहुत सारे देखते कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है. तो यहाँ पे एक एक वीडियो में बोलते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग, एक बोलते हैं कि अमेजोन, एक बोलते ब्लॉगिंग, एक बोलते ई कॉमर्स, एक बोलते ऑनलाइन कोचिंग. तो इससे वो कंफ्यूज हो जाते कि एक्चुअली करना क्या है, उनके लिए कौन सा बेस्ट है. They miss the राइट, path actually. ज्यादा हाँ, नॉलेज लेके उनको समझ भी नहीं आता कि कौन सा चीज नहीं आगे बढ़ होता. के फॉलो करना है. राइट. तो मैं हमेशा एक मैं आपको बोलना चाहूंगी कि देखिए, अगर हमको सिंपल लॉजिक है कि हमको फीवर आ गया तो हम किसके पास जाएंगे? डॉक्टर के पास, राइट. Yes, हमको एक exactly. फिनेंशियल इश्यूज के बारे में मतलब सॉर्ट आउट करना है तो हम चार्टर्ड अकाउंट पर जाएंगे. लीगल इश्यूज जाना है, लॉयर के पास जाना है. लेकिन जब आपको एक ऑनलाइन बिजनेस करना है, आपको एक डिजिटल मार्केटर बनना है, तो क्यों आप यूट्यूब पे जाते, फ्रेंड्स को पूछते, रिलेटिव्स को पूछते, जो उस फील्ड में एक्सपर्ट है वहां पे जाइए, ओके. Exactly. आपके कॉन्टैक्ट में जो भी है, आपको लग रहा है कि दिस इज द पर्सन हु इज डूइंग वेल इन दिस फील्ड, ओके, इनको एक्सपीरियंस है, ये ऑलरेडी कर रहे हैं, तो उनको जाके कनेक्ट हो जाइए डायरेक्ट. पूछिए कि ओके, आप कुछ कर रहे हैं, मुझे भी मेरे प्लान ऐसे है, दिस इज माई नीड, तो कैन यू हेल्प मी आउट. तो उनसे पूछिए, जब आपको एग्जैक्ट सोल्यूशन मिलेगा, राइट. अगर आपको हेल्थ इश्यू है तो आप इधर उधर जाके नहीं पूछोगे, डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाओगे, आपको सोल्यूशन मिलेगा. इन द सेम वे, Exactly. एनी वन ऑफ आवर व्यूअर्स आर लिसनिंग कि आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानना है, या एफिलिएट मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेस, हाउ टू मेक मनी यूजिंग ऑनलाइन बिजनेस, कुछ भी है, तो अप्रोच द पीपल हु आर ऑलरेडी डूइंग वेल इन दैट फील्ड. वो आपको अच्छे Exactly. तरीके से गाइड कर पाएंगे. देन यू कैन, इट इज वेरी इजी टू टेक डिसीजन, राइट. हाँ. तो ये लैग होता है लोगों के माइंडसेट में. तो इसीलिए वो लोग को इधर उधर घूम के फिर वो लोग वहीं पे रहते. सेम आफ्टर 2 months 3 months भी फिर वही सर्च करते हैं यूट्यूब पे कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन. तो वही दिस मेन थिंग, है कि लोगों को हाँ, अपना एग्जैक्ट कंसल्टेंट जो होता है उनको वो समझ नहीं पाते, बिकॉज ऑनलाइन का मतलब स्कैम है, उनको वो लग जाता है और माइंडसेट उनका चेंज नहीं हो पाता है. जैसे कि स्टूडेंट्स राइट, हो गए आजकल, तो स्टूडेंट्स है या फिर 18 to 36 ईयर्स के लोग जो एज ग्रुप के होते हैं, उनका माइंडसेट यस, अभी इम्प्रोवाइज होना है. और कोई भी कर सकता है, डिजिटल स्किल कोई भी सीख सकता है. ओनली थिंग इज लाइक दे हैव राइट, टू अप्रोच द प्रॉपर मेंटोर, एंड आफ्टर यस. दैट दे हैव टू अपडेट देयर माइंडसेट कि भाई मुझे करना है. ऑनलाइन में हर कुछ स्कैम नहीं होता है. हाउस नहीं वाइफ, होता, हाँ. होम मेकर, स्टूडेंट्स एंड लाइक आईटी प्रोफेशनल्स जो भी है पार्ट टाइम में भी करना चाहते हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल स्किल्स ऐसे हैं कि हम उसको हाँ, साइड में भी कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि भाई 24/7 करो. आप 1 घंटा भी कर सकते हैं, 2 घंटा भी कर सकते हो, अनलेस एंड अंटिल यू हैव ए प्रॉपर स्ट्रेटेजी, प्लेटफॉर्म एंड द मेंटोर, यस, राइट. राइट. यस, यस. हाँ, एक बार हम देखेंगे व्यूअर्स के कुछ क्वेश्चंस है, यस. तो फिर या. हम देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग. थैंक यू सागर, थैंक यू सरफराज, हैप्पी टू सी यू. अच्छा लगा आपको हमारे दोनों के लाइव में देख के. हेलो जुबेर. Thank you all. Let's take some question answers. I think people are interested to यस, have या make some डेफिनेटली हम replies. लोग, या. Miss थैंक यू Kiran सागर, थैंक यू 734. शरी. या, ओके. तो गाइस, अभी हम Q&A, ओके, लेट्स स्टार्ट सम Q&A क्वेश्चंस. आपको कुछ भी, इफ यू गाइस वांट टू आस्क एनी डाउट्स और एनी क्वेरीज, you guys can ask. If you want to learn digital marketing, okay, free digital marketing for free, I'm going to start that training very soon. So link मेरे bio पे है.
You can go and fill that. Okay, so you will get an update. जब भी वो free digital marketing start होगा, then you get an update. So if you are planning to learn digital marketing for free, okay, so I'm going to train. Me and my team is going to train you guys. Okay. So Nilofer has invited me for live. So this opportunity I would like to give to her audience. Okay. Yes, it So will be a good chance for everyone. yes. That's the reason. So you can go and check my bio. So I'm going to train you guys on digital marketing for free, right? So complete in very good knowledge you get there. So immediately go and sign in the link which is in my bio. Okay. Yes. So now whatever the doubts you have, you can ask. Okay. Then we will continue with our topic. How So if you to guys have are leads? Someone asked like leads कैसे लाते हैं डिजिटल मार्केटिंग में? लीड्स कैसे हाँ, मिलेंगे? तो लीड्स में आपको पर्टिकुलरली आप बताइए कि आपको किस चीज के लिए लीड्स लाना है. ओके, रिगार्डिंग व्हाट यू वांट टू ब्रिंग अ लीड, तो उसके लिए मैं आपको पर्टिकुलरली गाइड करूंगी. Anyone want to come live with us for a moment? Yeah, if you guys I have seen many digital marketers are here with us. Sakshi is there, Sarfraz is there, and many digital marketers are with us. If you want to collaborate for a minute, you can join with us. We are welcoming yes, you can join. And whatever the opportunity I am giving you, that free digital marketing, okay, there you will learn digital marketing and you will also learn how to grab clients. Okay, if you are learning website designing, okay, then how to grab clients for the website designing, how to get the project, everything you will be learning there. So it is the best opportunity. We are giving only few slots for free, rest will be paid. Okay, so we would like to give a opportunity to our community. Okay, so Nilofer and me are same team. So we both planned this so that we can give them value for free. Okay, we can show a path to them so that they learn digital marketing. Nice, Initially. Sagar. Sagar has registered also. So audience, whoever is interested to learn digital marketing skill with us, they are requested to join the bio. The registered Kiran 2734 sent a request to be live. He want to come live. Shall we take him? Yeah. Okay. Yes. Hello, Shahida. Happy to see you here. So if you guys have any queries or any doubts, you can ask here. Okay. Can you please give some tips for startups? Okay, so we are starting with affiliate marketing, right, Shahida? See, first, basic tip is whatever you are starting with affiliate marketing, then first learn what is affiliate marketing, is what is the exact process. Okay, so if you learn that, then you have to start working. First thing is your profile optimization. You have to optimize your profile. So how to optimize? Using Canva, you can optimize your profile. You can design your cover photo. You can write a bio. Okay, so it is completely available in the training. So I will guide you step by step. Personally, we will connect on call, Shahida. Or you can ping me on my messenger also. I think there is a net issue from his side. Yeah, okay. Anyone want to come live with us? Hi, Durga. Durga has joined just now. Hi, Durga. Thank you, Haider. Valuable session. Thank you. If anyone is having any doubt regarding the monetization of digital skills, let us know. There are so many digital skills and you want to know how to monetize them, you can put your questions. We'll be happy to answer it. Yes. And whoever are like want to learn digital marketing for free, there is a link in my bio. Go and fill the form so that you can learn digital marketing for free. I'm very soonly I'm going to start the session. Okay, so you will get complete updates on your mail as well as on your number. Nilofer,
I think there is a connecting issue. Yeah, there was some. So yeah. So yeah, regarding our topic, if you want to ask, we can continue the discussion. Yeah, audience, if you have any questions regarding digital skills and how to monetize them, please share your question. Hi, Hi, Zahid. Mohammed Zahid. Okay. So, Shireen, I think people are okay with the topic flow. They have understood, I think. Okay, 1 minute. Digital Sagar want to come live. Yeah, 1 minute, Sagar. I'll put you live. Yeah. So I would like to tell the common mistakes meanwhile, okay, so that the viewers can get value completely. Okay. Ma'am, can you guide me? Yeah. Hi, Hi. Yeah, Sagar. hi, Sagar. Hi, nice to meet you. Nice, valuable content you're providing, ma'am. And I got to know small things which I was committing mistakes. So we'll try to come over it. And I just wanted to know what are the other ways to increase leads. I mean, I do outbound marketing, so I wanted to know what are the skills we can apply so that we can apply inbound marketing also. I mean, Okay, outbound incoming marketing, leads. Sagar. Yes, ma'am. Okay, okay. You are doing what? Affiliate marketing or any other thing? Affiliate marketing, Okay, ma'am. Yeah, affiliate you're doing marketing. affiliate marketing. Okay, now you want to generate leads using inbound marketing. So the best thing, best Yes. way to increase your inbound marketing is your personal branding and attraction marketing. Okay. Okay. Attraction marketing means you have to increase your means you have to increase the visibility first thing on social media. See, Right, people right. approach Yeah. when people will approach you, if they feel that Sagar is a person who can help them. So they will approach you for help, right? You no need to go and ask Yes. them Yeah. for the business. If they feel that Sagar is a Okay. person who can guide me in online business, who can help me to make money online, then definitely they will approach you. So how they will guide you? Right, right. Yeah, how they will believe you? By because of your process, how you are doing promotion yourself means what type of content you are posting, you are coming video live or not. Yeah. Okay, you are collaborating, matlab you are coming live or not, you are posting content or not, that content is helpful for them or not. Okay, so a consistent Okay. basis, Okay. on consistent basis you have to represent your business using social media. So So don't, means we need to deliver consistent values yeah, consistently. yes, That's yes, it. and Yeah. try to take live. Okay, 1 minute, 5 minutes is also fine. Come live, Yes. Yes. post Yes. content, make videos. Okay, ask for collaborations. Okay, ask for collaboration. Nilofer Right. asked me for the collaboration, and we together are making Okay. Yes. content. Right. In the same way, you can also ask Yeah. collaboration. So it will be like it will increase your reach. It will increase your branding. When Yes. Yes. someone Yes. sees your Definitely. Yes. profile, Yes. they feel like you are a brand. Okay, then definitely they will. Right. Right. So Right. this is the best thing for the inbound marketing, increasing your personal brand, visibility, authority. Right. Okay, this Right. will be happening by consistent work. You have to as we know that value, inspiration, result, and promotion. So you have to show Yes, all ma'am. shades, Agree. not like only promotion. Yeah. Yeah. So you all shades. Okay, yeah. Right. Right. Yes. Yes, This ma'am. Yes, I have followed certain steps, and I am noticing changes also. Last night only one of my reel got some viral, not exactly viral, but got more likes consistently, nearly about 200 more likes. And yeah, exactly the steps you told, I am following also that yeah, only. yeah, good, good. I'll improve more. Yeah, yeah, okay, okay, Yeah. yeah. So do that. Why? Because Yes. So nice to talk to yeah, you. yeah, same here, Saga. Thanks for connecting. Yeah, thanks Nilofer ma'am Yeah. also तो सागर एंड for conducting the this point here is sessions. like आपको अगर कुछ भी करना है तो content is the king. डिजिटल मार्केटिंग में क्या है, कंटेंट इज द Yeah. किंग एंड द माइंडसेट एंड कंसिस्टेंसी से सब Right. करना Right. है. तो आपका रीच बढ़ेगा, आपका Yes. ब्रांडिंग Yes. होगा, Yes. ट्रस्ट बढ़ेगा, तो आपको ज्यादा आपका क्या बोलते हैं लीड मिलेगा. Definitely. कंटेंट इज ऑलवेज द की, Yeah. Yeah. माइंडसेट, Exactly. कंसिस्टेंसी.
Thanks, Sagar, Yes. and thanks, Shahrin, Great. for Thanks, clarifying thanks these a lot, doubts. Yeah, ma'am. thanks. Yeah, thanks, Sharon, ma'am. Thanks, Nilofa, Yeah, ma'am. thanks. Yeah, thank you. Ma'am, I'm Thanks a lot. frustrated and don't know what to do. Zahid, we will connect personally, okay? I would like to talk to you. We had a fast discussion also, right? So we will discuss on call. Okay, you don't worry. Your frustration will go out after talking to me. See, Zahid, telling the point is the first thing. You have taken the action to reveal what is your feeling, so that the answer can be find out now. So the action takers will always think about the problem, then they'll think about the solution. Solution is with us. We will connect with you offline. Okay. Yes, yes, Keep yes. motivated yourself. We'll give you a reply also. Anyone who Yeah. want to come live for some time, any question? Like it will be exposure for the newcomer. Anyone? Sakshi, Soumya, Heather. A common mistake people do in affiliate marketing, they know they have the value, okay, they know the knowledge, they have the complete value, but they don't make videos, they don't come what represent themselves, okay, to the camera, okay. So ये videos personal brand पे they won't focus. इससे क्या होता है ना, trust issue होता है. Then this, if you don't do personal branding, it leads to lot of question. मतलब leads पूछेंगे कि आप उनको trust नहीं होगा कि they don't believe you. See, if we are also same, right? If some person is not even having content on his profile, what will you feel when you see his profile? वो trustworthy लगेगा? नहीं लगेगा, right? उसके प्रोफाइल पे कुछ नहीं है उसके बिजनेस रिगार्डिंग, उसका जर्नी को वो लोग ने डॉक्यूमेंट करके नहीं रखा. They did not document their journey on profile. Then if someone see, then the trust won't build. Or Exactly. on the other hand, you are making videos, you are going live, you are sharing lot of content, you are showing your results, your team results, okay, then the trust will build automatically. They don't ask that this is a scam, you are doing scam, such type of questions no one will ask. Yes. तो Okay. मेरा तो पॉइंट यहाँ पे क्या आता है ना शहरीन, जैसे कि देखो यार, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, डिजिटल स्किल्स हैं, सब कुछ डिजिटल है, तो आपको भी डिजिटली प्रेजेंट होना चाहिए आपकी ऑडियंस के सामने, तभी ट्रस्ट गेन होगा, तभी आपका बिजनेस बढ़ेगा. बिकॉज अभी हम ऑफिस से जा रहे हैं, हमारा जो ऑफिस है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही है. जब आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल रहेंगे, लाइव रहेंगे, आते रहेंगे, वीडियो बनाते रहेंगे, बात करते रहेंगे, अपने रिजल्ट बताते रहेंगे, डॉक्यूमेंटेशन करते रहेंगे, तो तभी सामने वाले को आप पे यकीन होगा. Right. दैट इज अ गुड पॉइंट आपने बताया कि जो कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं, हेजिटेशन हो जाती है. इसलिए मैं लोगों को थोड़ा बहुत लाइव आने के लिए बोलती हूँ कि एटलीस्ट 1 मिनट के लिए भी आ गए ना, तो वो आइस ब्रेक हो जाएगी उनकी. Right हो जाएगा. कॉन्फिडेंस आता है कि भाई चलो हम कैमरा फेस कर सकते हैं. Yes, right. And second thing is they don't know when to sell. Okay, कि अगर फर्स्ट कन्वर्सेशन पे ही वो लोग कोई लीड आ रहे हैं और उनको बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में पूछ रहे हैं, तो उनका ये होता है कि चलो अभी हम इनको बिजनेस के बारे में बता देना है, एंड देन ऑन द स्पॉट दे वांट टू ट्राई टू क्लोज. ओके, सो दिस थिंग इनिशियली मैंने भी किया कि मतलब वो एक होता है कि अरे इसको क्लोज करना है, ओके, ये सेल को क्लोज करना है, ये होता है डेफिनेटली, लेकिन हमको ना थोड़ा कंट्रोल रखना है. ओके, हमको प्रोसेस जो हम लोग ने समझा उस प्रोसेस से कंपलसरी वो सिस्टम से गुजरना है. ठीक है, ऐसा नहीं कि डोंट ट्राई टू सेल ऑन द स्पॉट. ओके, तो सेल करने का भी एक टाइम होता है. ओके, कि वहां पे आप सेल करोगे तो वो लीड आप खो जाओगे. ओके, तो उनको डेस्परेट नहीं होना है. यू हैव टू नो व्हेन टू सेल. पिच नहीं करना चाहिए ज्यादा, नहीं करना, उनको बारे में जानो, समझो कि भाई दे वांट टू डू. हम लोग कहते हैं ना कि पीपल डू बिजनेस विद द पीपल, नॉट विद द प्रोडक्ट, नॉट विद द कंपनी. तो वो पीपल से पीपल वो जो बनना होता है, मतलब क्या बोलते हैं, कोलैबोरेशन, उसमें टाइम लगता है. ऐसा नहीं कि आप एक सेल्समैन बन जाओ, ऐसा नहीं है. वी हैव टू बिकम अ कंसल्टेंट. वी कैन बी प्रॉब्लम सॉल्वर. एवरी बिजनेस शुड बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए, सोल्यूशन गिवर होना चाहिए. ये नहीं कि भाई आज आपसे बात हो रहा है मेरा, बस ये ले लो, ये खत्म करो, ऐसा नहीं होना चाहिए. एवरी बिजनेस शुड बी सोल्यूशन प्रोवाइडर. तो इसमें टाइम लगता है, डेस्परेशन कुछ नहीं होगा. तो इनिशियली yes, it happens. Okay, इनिशियली मेरा भी वैसे ही होता था, लेकिन I realized कि this is not the right process. So I used to control myself. कि I used to ask number of questions कि actually क्या है उनका बैकग्राउंड, क्या है. Okay, if they want to do affiliate marketing, उनको उसका बेसिक आइडिया तो है या नहीं,
जस्ट वो अर्निंग स्क्रीनशॉट देख के आए अपने पास, उसका बेसिक नॉलेज तो है या नहीं। ये भी चेक करना है कि कितना वो लोग को वो नीड है, कि ऐसी अर्निंग देख के टाइम पास के लिए आए ना या रियली नीड है। तो कैसा पता चलेगा? यू हैव टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम व्हेन, फ्रॉम हाउ मेनी डेज यू आर लुकिंग फॉर सच अपॉर्चुनिटी। आपने पहले कुछ ट्राई किया क्या? आपने पहले कुछ ऑनलाइन बिजनेसेस किए? ओके, तो व्हाई यू वांट टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग, रीजन टू स्टार्ट एफिलिएट मार्केटिंग। इस तरीके से आप पूछेंगे तो उनको उनका सीरियसनेस, उनका उनका नीड पता चलेगा आपको कि व्हाई दे वांट टू डू एफिलिएट मार्केटिंग। Okay, if they don't have any basic idea, first guide them, first educate them that affiliate marketing होता क्या है। हम गाइड नहीं करते, डायरेक्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी बताते, एंडिंग में जाके वो लोग बोलते कि हाँ ये तो ओके सीखना है इसके लिए, ओके इसके लिए इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पे किसका वेस्ट हुआ टाइम? आपका ही। वो सारे जंक होते, राइट। तो आपको फिल्टर करना है। सो हाउ यू हैव टू फिल्टर इससे विथ योर रिलेटेड क्वेश्चन प्रोसेस। दिमाग में आता है अभी। अभी जो हाँ आपने बातें बोली ना, उससे क्वेश्चन आया हाँ मेरे दिमाग में कि भाई हाँ आप कैसे, अब देखो इतने सारे लोग ऑनलाइन में हमको, जैसे लोग अब जब हम पिच करने जाते हैं, बात करने जाते हैं, तो पीपल विल क्वेश्चन अस कि भाई स्कैम है ये, हम नहीं करेंगे आपके साथ। तो सिमिलरली जब हम बिजनेस करने, मतलब जब हम आगे बढ़ते हैं डिजिटल स्किल्स के थ्रू, डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए, टू गेट मोनेटाइजेशन फ्रॉम दोज स्किल्स, हाउ वी शुड आइडेंटिफाई कि ये हमारा कस्टमर है या नहीं है, मतलब कैसे जस्टिफाई करना चाहिए, उस पर पॉइंट्स बताइए आपके। हाँ। अभी देखिए सिंपल है, हम मूवीज देखते राइट, हम रियल टाइम पे भी देखते हैं कि अगर कोई एक ऑफिसर एक एक थीफ या कुछ किसी को भी ओके इन्वेस्ट वो किया नहीं किया, मतलब उसका इंटेंशन क्या है जानने के लिए क्या करते, उसको इन्वेस्टिगेट करते, उसको क्वेश्चंस पूछते, उसको समझते, उसके आंसर्स क्या है, उसके आंसर्स को देख के जज करते कि व्हाट इज ही, ओके व्हाट इज ही, वो सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, वो कौन से स्टेट पे है, राइट। इन द सेम वे हम हमारे ऑडियंस से बात करना है, क्वेश्चंस पूछना है। तो स्वॉट क्वेश्चंस एज आई टोल्ड दैट उनको कितना नॉलेज है, पहले करे या नहीं करे, कितने दिन से इस अपॉर्चुनिटी को देख रहा है। अगर वो बोलेगा कि 6 मंथ से मैं ढूंढ रहा हूँ, तो 6 मंथ से ढूंढ रहे तो अपने को लगेगा कि वो थोड़ा हॉट लीड है, मतलब जो आप ज्यादा इंटरेस्टेड है, वो रिसेंट अभी सर्च करना शुरू किया, तो वहां पे लगेगा कि आपका वो कोल्ड लीड है, उसको कुछ पता नहीं और अभी उसका रिसर्च स्टार्ट हुआ। तो इससे ही आपको पता चलेगा। तो इमिडिएटली कौन सा भी लीड क्लोज नहीं होता, उसको क्वालिफाई करना आपके क्वेश्चन से ही। और इनिशियल में आप उसको फ्री वैल्यू देना कि अगर आप अफिलिएट मार्केटिंग करते हो तो वो अगर वेबिनार देखेगा तो उसको बहुत सारा वहां पे नॉलेज मिलेगा। ओके, तो वेबिनार क्यों देखना है और उस देखने के लिए उसका अर्जेंसी, मतलब वो इंटरेस्ट किस तरीके से क्रिएट करना है, वो आपके ऊपर है। आप उसको क्लियरली एक वॉइस नोट भेजना है कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन दिस 30 minutes you are going to learn about affiliate marketing, एग्जैक्ट क्या होता है वो सीखोगे। सो विदाउट एनी डिविएशन आप बैठिए, बुक पेन से बैठिए और इस वेबिनार को देखिए और पॉइंट्स को नोट करिए। वंस इट इज डन, we will connect on call, I will ask you some questions, based on that okay I will decide कि you can work with me or not। इस तरीके से आप पूछ सकते हैं जब आपका एक क्रेडिबिलिटी बिल्ड होगा, क्योंकि हमेशा अथॉरिटी अपने पास रखना है और उनको एक बताना है कि वाई दे हैव टू वॉच। खाली हम ऐसा देखो बोल के बोले तो नहीं होगा, उनको एक वॉइस नोट भेजना है कि हाय नीलोफर, आई हैव शेयर्ड यू द वेबिनार, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वेबिनार टू स्टार्ट योर बिजनेस और टू स्टार्ट योर एफिलिएट जर्नी। ओके, इसमें सारा कुछ आपको ईच एंड एवरी स्टेप आपको वैल्यूएबल है, वेरी इंफॉर्मेटिव है। ओके, सो वॉच विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, मेक अ नोट ऑफ पॉइंट्स। ओके, आफ्टर दिस पिंग मी, वी विल कनेक्ट ऑन कॉल, सो लेट्स डिस्कस आफ्टर दैट। ऐसा एक वॉइस नोट डालने से उनको वो होगा कि अरे हाँ, मतलब इन्होंने वॉइस नोट भेजा है, तो वो सीरियसनेस आएगा थोड़ा, अगर वो इंटरेस्टेड है तो वो देखेगा। तो ये सारे थोड़ा ट्रिक्स करना है अपने को। ओके, तो इससे एक पर्सनल एक टच भी होता, कि पर्सनल टच भी होता कि हमारा वॉइस मैसेज जा रहा है, वो सुन रहे हैं। ओके, देखिए अगर कोई मैसेज इग्नोर कर सकता है, लेकिन जब आप वॉइस मैसेज भेजते हैं तो वो इग्नोर नहीं करता है, उनको लगता है कि अरे भेजे क्या इन्हों, सुनेंगे एक बार। ऑब्वियसली हम लोग भी होते हैं ना कि कोई वॉइस मैसेज भेजे तो आप डेफिनेटली सुनते कि क्या है वो, अरे क्या भेजे इन्होंने, तो वो टाइप ऑफ होता। तो हमारा मेन मोटिव क्या है कि वी हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू वॉच द वेबिनार।
वही तो, ये मतलब ये कुछ फिल्टर्स हैं जो हमको लगाने चाहिए कि पहले अंडरस्टैंड करना है कि वो बंदा कब से कोई मतलब साइड इनकम ढूंढ रहा है, राइट। मतलब काफी समय से ढूंढ रहा है, तो मतलब ही इज वेरी हॉट, लाइक ही हॉट लीड है, उसको काम हाँ, चाहिए, उसको कुछ चाहिए, तो उसको हम उनको ब्रश अप पूछिए कर 6 मंथ्स सकते है, हाँ 6 मंथ्स है, तो देन यू आस्क हैं। 6 मंथ है आप, हाँ 6 मंथ्स में आप कुछ ट्राई करे क्या, डिड यू ट्राई एनीथिंग बिफोर? तो बोलेगा कि हाँ मैंने ये ट्राई किया, इसमें मुझे रिजल्ट नहीं आया। ओके, रिजल्ट क्यों नहीं आया, पूछिए, मतलब जानिए, तो वो यस किस यस, उसका माइंडसेट पता चलेगा। मुझे वहां पे ट्रेनिंग नहीं मिला, मतलब उसमें मेरे को आइडिया नहीं था कैसा करना था। ओके, सो इसीलिए मुझे रिजल्ट नहीं मिला। तो वहां पे उसका पॉइंट मिल गया कि वहां पे उनको मेंटर नहीं था। Then you can stress a point that here you have a mentor, and I will also guide you. I'm also doing successfully affiliate marketing, so I will also guide you. तो उसका वहां पे वो जो मिसिंग ब्लैंक पॉइंट था स्पेस कि वो हाँ मैं मेंटर वाला, इसको, हाँ मेंटर वाला जो उसका क्वायरी था, उसका वो पेन एरिया था, वो आप सोल्यूशन दे रहे हो। तो इस तरीके से एक नॉर्मल कन्वर्जेशन होना है, वो जाके प्रोसेस के थ्रू वो आपको कन्वर्जेशन होगा, मतलब कन्वर्जन मिलेगा। nice, yeah, nice flow. Once we differentiate the lead quality, then we can then we can ask so many questions to dig the problem, understand the problem, and afterwards अपना solution बताएंगे, तो वो भी थोड़ा happy होके आगे बढ़ सकता है. That's good thing actually. या एंड जब लोग बोलते हैं कि भाई ये स्कैम है कोई भी ऑनलाइन बिजनेस, तो उसको कैसे आप डील करते हो? So I said that how you can prove that this is a scam? Do you have anything to prove? पूछती हूँ मैं यस, उनको डिटेल्स कि आप कौन सा बेसिस पे इसको स्कैम बोलते हैं। ये स्कैम नहीं है बोलने के लिए मैं आपको 100 रीजंस दे सकती हूँ। आई हैव दैट, ओके, आई हैव दैट प्रूफ्स विजुअली, एंड आई हैव माय कंप्लीट जर्नी व्हिच इज डॉक्यूमेंटेड ऑन माय सोशल मीडिया, राइट? आई हैव माय कंप्लीट टीम। हाँ, so how you can say confidently, how you can prove, can you please prove me? Just I ask them. अगर वो लोग खाली ऐसे टाइम पास के लिए स्कैम है वो ये बोल रहे तो चुप रहे थे। अगर वो लोग सही में उनको कहीं पे, या उनको सही पे कहीं पे तो भी थोड़ा लगेगा कि उनकी नेगेटिव रिव्यूज देखिए सोशल मीडिया में पॉजिटिविटी कितना फास्टली स्प्रेड होता है, उतना फास्टली नेगेटिविटी भी स्प्रेड होता है। अगर कोई एक बंदा वो प्रोसेस फॉलो नहीं करके उसको रिजल्ट नहीं आया, तो वो अगर सिस्टम को ब्लेम करा, तो एज ए एंड यूजर उनको क्या लगेगा, लीड्स आर, मतलब कोई भी एक स्कैम है, ओके, बिजनेस स्कैम है। तो अगर वो उस टाइप ऑफ कंटेंट या स्क्रीनशॉट को डालेगा, देन आई विल क्लियर दैट। उसका जो माइंड में वो है मैं उसको क्लियर करूंगी मेरा आंसर से। अगर नहीं तो इनिशियली मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही है, ओके ओके नीलोफर, यू आर सेइंग इट्स अ स्कैम, देन कैन यू प्लीज प्रूव इट? ओके, वही होगा। तो बहुत सारे लोग चुप हो जाते, बहुत सारे लोग बोलते ये वो, देन जस्ट प्रूव मी। उसके बाद मैं आपको 100 रीजंस बताऊंगी कि वाई इट इज नॉट स्कैम। तो उस कॉन्फिडेंट होगा ना, हाँ वो कॉन्फिडेंट वाला अपना रेस्पॉन्स ही वो लोग को आंसर दे देता है कि दे आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑन देयर बिजनेस, राइट? दे आर कॉन्फिडेंट ऑन व्हाट दे आर डूइंग। तो वहां पे उनका मतलब XYZ क्वेश्चंस नहीं आएंगे, वहीं पे वो कट ऑफ हो जाएगा। अगर हम खुद सोचने पे लग जाएंगे कि हाँ ऐसा क्या, ये कहाँ पे देखे, ओ ये कहाँ से मिला, ये कौन है, हम इस तरीके से अगर हम बोलेंगे तो उनके 10 क्वेश्चंस आ जाएंगे एक ही बार। So you first of all you should be confident on your business, whatever you are doing, whatever you are representing on social media, you should be 200% confident. Yeah, exactly. Nice replies. Yeah. Thanks यार। देखो कुछ चैट देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन है हाँ sure. Hi Zaid. Yeah, we both are good. How are you? Okay. Hope we have covered it, right, Nilofa? Yeah, very well we covered, and we got questions also, and I'm happy that we shared the platform with third person also, means थोड़ा collaboration भी हुआ, उसको भी ice breaking हुआ, and अभी किसी को join करना है live with us, we can give a chance, opportunity to you people also. Let us know if anyone want to break the ice by collaborating with us. किसी को live आना है? I think I got request from Sufi Mali Khan. Okay. If you have any question, let us know, Sufi. Yeah, I have invited